Good morning, students. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Students, in continuation of chapter number 5 of Science, Coal and Petroleum, our today's video's topic is destructive distillation of coal. बड़ी सी टर्म आ रही है, राइट? समझते हैं कि क्या होता है इसको इजी वे के अंदर. It is the heating of coal strong at a very high temperature in the absence of air to obtain some useful products from it. That is called as destructive distillation of coal. अगर कोल को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर एयर के एब्सेंस में अगर हीट करते हैं ताकि उससे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो जाएं, तो इस प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं destructive distillation of coal. Let's understand this process with the help of this diagram. First of all, let's see what are the apparatus we are using over here. Here we are having two boiling tubes. एक boiling tube हमने यहाँ पे use की है and this one is the second boiling tube. These boiling tubes are arranged at their position with the help of this stand. stand की help से इन दोनों boiling tubes को हमने इनकी position के ऊपर hold करके रखा है. Then we are using a burner. This burner used in laboratories is called as Bunsen burner, as it was derived, as it was discovered by the scientist whose name was Bunsen. तो उनके नाम के बेस पे इस बर्नर का नाम होता है बुनसन बर्नर. इसको हमने यूज किया है. यहाँ पे हम कुछ ग्लास ट्यूब्स को यूज कर रहे हैं. अब समझते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैसे होता है. टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कोल. हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने वाले हैं ना. तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी आर टेकिंग कोल इन दिस फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब. Now this coal is heated at a very high temperature in this boiling tube. बहुत high temperature पे इसको हम heat कर रहे हैं. And moreover that you can see the mouth of this boiling tube, it is covered with a cork. एक cork से इसके mouth को हमने pack कर रखा है so that there is no air. वहाँ पे air present नहीं है इस boiling tube के अंदर. तो in absence of air at a very high temperature, that coal which is taken in this boiling tube gets heated. जब ये heat होता है students, it forms three byproducts. main three byproducts का यहाँ पे ये formation करता है. सबसे पहले क्या होगा, इसमें से कुछ वेपर फॉर्म के अंदर सब्सटेंस रिलीज होते हैं. एंड व्हेन दीज वेपर फॉर्म्स ऑफ गैस, जो ये कोल को हमने हीट किया तो इससे जो हॉट वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, व्हेन दोज हॉट वेपर्स आर बबल्ड इन दिस बॉइलिंग ट्यूब विच इज फिल्ड विद द वाटर. इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने हाफ फिल कर रखा है इसको वाटर के साथ. तो इसके अंदर अब उस हॉट वेपर्स को हम बबलिंग करवाते हैं. अब क्या होगा, there is one gas which is insoluble in water. यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है जो इस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, वो insoluble है. That gas comes out through this pipe tube-like structure and this gas is called as coal gas. इसको हमने coal gas कहा है. The second substance, कुछ जो hot vapor थी वो जो insoluble था substance, वो तो बाहर निकल गया coal gas के फॉर्म में. The remaining hot vapors, they get mixed, they get dissolved in this water and in this way they form one liquid substance which is called as coal tar. This coal tar being heavier, it gets deposited at the bottom of this boiling tube. ये नीचे की तरफ जाके अपनी separate layer का formation कर लेता है. Now what is present above this coal tar layer in this boiling tube? इस coal tar layer के ऊपर boiling tube में क्या present है, यहाँ पे जो water present था इसमें कुछ hot vapors के अंदर अमोनिया भी present है and that ammonia gets dissolved in the water and makes a separate layer over here which is called as liquor ammonia. उसको हम liquor ammonia कहते हैं. So there are three main byproducts. हम तीसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे. हमने कहा था कि we took coal over here, कोल को हमने हीट दिया तो कोल गैस का फॉर्मेशन हुआ, कोल तार का फॉर्मेशन हुआ है. The third major byproduct is the powdered coke. अब एक कोक कैसे है, कोल के बर्न होने के बाद जो उसका रेजिड्यू बचता है, रिमेनिंग पार्ट है,
उसी को हम क्या कहते हैं, कोक. सो दिस कोक प्रेजेंट ओवर हियर इज इन दी पाउडर्ड फॉर्म, राइट. सो मेजर 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए हैं विच इज कोक, कोल गैस एंड कोल तार, और साथ में एक और बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज लिकर अमोनिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज बाई प्रोडक्ट इन डिटेल वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द कोक. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोक बना था, हमने कोल यूज किया था, कोल को हमने हीट किया, दैट कोल गेट्स बर्न, और बर्न होने के बाद जो उसमें बचा हुआ मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज कोक. सो दिस कोक इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये ब्लैक कलर का पोरस, हमने कहा ना पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और बहुत ही टफ हार्ड सब्सटेंस ये होता है. It almost has a pure carbon because coal is majorly composed of the carbon. कोल के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है. अब उसको भी जब हमने बर्न किया तो उसमें से कोल गैस रिमेन हो गई, कोल तार रिमेन हो गया, सेपरेट हो चुका है, तो सिर्फ बाद में जो बचता है दैट इज द प्योर कार्बन. दैट प्योर कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कोक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेयर दिस कोक इज यूज. इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं. Students, this coke is mainly used in the manufacturing of steel and in extraction of many metals. अर्थ के नीचे काफी सारे जो मेटल्स अपनी इम्प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हैं, उनमें से प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, बाहर निकालने में, सेपरेशन के अंदर या तो हम इसको कोक को यूज करेंगे या फिर स्टील के फॉर्मेशन के अंदर भी इस कोक को यूटिलाइज करते हैं. Let's see what are the properties and uses of the next byproduct of the coal which is coal tar. बात की थी हमने ऑलरेडी, that is coal tar is the heavy substance liquid form के अंदर प्रेजेंट है. so इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, it is of the black colored thick liquid, बहुत ही विस्कस चिपचिपा सा गाढ़ा सा एक लिक्विड फॉर्म होता है called as coal tar. बात करते हैं इसके कंपोजिशन की. Students, this coal tar is made up of about 200 of different substances. अलग अलग एलिमेंट सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. किसके अंदर, इन दिस कोल तार. लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ कोल तार. कहाँ पे ये कोल तार यूटिलाइज होता है. सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी सब्सटेंसेस. काफी सारे सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में, लाइक पेंट्स हैं, डाइज हैं, उनके एक्सप्लोजिव के फॉर्मेशन में कई जगह पे काफी सारे सब्सटेंसेस हैं जिनके फॉर्मेशन में एक इनिशियल सब्सटेंस के फॉर्म में कोल तार इज बीइंग यूटिलाइज्ड. इट इज हैविंग वेरी बैड ऑडर गंदी इसमें स्मेल प्रोड्यूस होती है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कोल तार. Students, in initial time, beginning, this coal tar was also used for the metaling of roads. roads को हार्ड बनाने में, रोड जो होती है, सड़कें जो होती हैं, उनको मेटलिंग करने में, हार्ड बनाने में कोल तार को यूटिलाइज करते थे. But nowadays that coal tar has been replaced by the another substance which is bitumen. And this bitumen, it is a byproduct of petroleum. इसको हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं. तो आजकल जो सड़कें बनती हैं they are metalled by the bitumen, और पहले के टाइम में कोल तार को यूज करते थे. Let's talk about the last product of the destructive distillation of coal which is coal gas. बात ही समझ में आ रहा है हमें. इट इज फाउंड इन दी गैसियस स्टेट. ये गैसियस, दिस कोक वाज इन सॉलिड स्टेट बट दिस कोल तार वाज इन लिक्विड स्टेट एंड कोल गैस इज फाउंड इन दी गैसियस स्टेट. It is used in the industries as a fuel because friends, coal gas is a combustible substance. ये इजीली बर्न हो जाता है, तो इसको फ्यूल की फॉर्म में काफी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यूटिलाइज करते हैं. And moreover that this coal gas was once used in the street lighting also. गलियों में जो सड़कों पे लाइट्स होती हैं उसमें भी इसको यूटिलाइज करते थे. So it was first used for the purpose of street lighting in the London in the year of 1810, and then it was used in the New York for the first time for street lighting purpose in the 1820. Students, we have discussed in detail about the coal कि कैसे इसका destructive distillation होता है, how it is formed, how it is extracted, right? इसकी सारी properties हम study कर चुके हैं. Now at last, let's talk about some of the uses of coal. हम coal के uses की बात करते हैं कि coal को हम mainly कहाँ पे use करते हैं. First of all, it is used as a form of
फ्यूल फॉर द कुकिंग पर्पजेज, कुकिंग ऑफ फूड के अंदर इसको यूटिलाइज करते हैं. देन इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट, and it is also used in the form of fuel in many more industries. And students, this coal was in ancient times, काफी साल पहले जो पावर इंजन, जो रेलवे इंजन होते हैं, टू रन स्टीम पावर्ड रेलवे इंजन, उनके अंदर भी कोल को जनरली यूटिलाइज करते थे. At last, I would like to tell you one more thing about the coal. Students, coal के अंदर major component क्या है? That is the carbon. And whenever carbon containing substances get burned, कोई भी carbon containing substance जब burn होता है, for burning of any substance, the gas which is essential, that is the oxygen gas. तो कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस अगर बर्न होगा तो कौन सी गैस उसके लिए रिक्वायर्ड है? That is the oxygen gas. And whenever carbon burns in the presence of oxygen, it mainly forms carbon dioxide gas, and along with it, it produces energy. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा ये, और साथ में ये एनर्जी रिलीज करता है. So हम जितने भी about 60%, more than 60% of the energy which we consume, which we utilize, that is obtained from the coal. 60% और more than 60% जो एनर्जी है वो हमें किससे मिल रही है? कोल से ही मिलती है. That's why it is well said that life without coal would be miserable for us. हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं होगी जैसे हम आज सर्वाइव कर रहे हैं. It would be completely different if we will not have the enough sources of coal, right, for our consumption, consume करने के लिए. That is the reason we are always asked to use the coal or coal products for in a wise manner. काफी सोच समझ के इसको हमें यूज करना चाहिए. That's all for today's video. Thanks for watching.